Students, this is Purnima Tyagi here, and today I am going to explain you the chapter The Tale of Vishnoi. Students, this is a very popular story of Rajasthan. This story is about that Vishnoi community which brought a great change in the environment of Marwar. This area was a treeless vast expanse of centuries where you can not come through any patches of greenery. Vishnois are the people who sacrifice their life to save khejuri trees, and their contribution to save the greenery and animals is really very remarkable. So students, let's start with the story. Today Marwar is a treeless vast of sand and rocks. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunted bare or babool trees. But incredibly, you can, even in this desert, come across the odd village and groves of well-grown khejuri trees. This cousin of this babool is a kalpavriksha, the tree that fulfills all wishes. A full-grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle, and camel. Its pods can be made into a delicious curry, and its sauce guard the farmer's field against marauding animals. Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which holds sway today. Even though the climate was the same as it is today, the land was covered by the sands. Upon the sands of khejuri trees, thousands of khejuri trees, and there was plenty of bear, kher, and sangri. These plains were home to thousands of antelopes, blackbucks, chinkara, and nilgai. And on this bounty lived the tribes of भील्स. स्टूडेंट्स, आज जो मारवाड़ है वो एक ट्रीलेस वास्ट है सैंड और रॉक्स का, और यहाँ पर जो खिलने वाले जो पेड़ हैं वो भी अनडेवलप्ड, जैसे बबूल का पेड़, बेर, केर, ये इस तरह की जो रफ ग्रास है वो यहाँ पर उगती है. पर बहुत ही अविश्वसनीय रूप से यदि आप डेजर्ट के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसी जगह मिलेगी, एक ऐसे विलेज मिलेगा जो कि इन सब से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर आप बहुत सारे खेजड़ी के जो पेड़ हैं खिले हुए, उन पेड़ों के एक कुंज को आप वहाँ देखेंगे. और इस पेड़ को बबूल, ये जो है कजिन कहलाता है बबूल का, इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं इस पेड़ को, जो कि सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला माना जाता है. ये जो कैमल है उनके लिए एक शेड के रूप में काम करता है ये पेड़, और बहुत सारे जो गॉट, शीप, कैटल और कैमल वगैरह हैं उनको वहाँ पर नरिशमेंट मिलता है, यानी इनका जो लीव्स हैं इस पेड़ की उनको खाकर उनका पेट बढ़ता है. एंड उसकी जो पॉट्स हैं, उसकी जो छोटे छोटे पॉट्स हैं उनसे कड़ी बनाई जाती है डिलीशियस. और इसके जो कांटे हैं, इस पेड़ के जो कांटे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. वो भी फार्मर के जो फील्ड है उसको एनिमल से सुरक्षित रखने के लिए, जो खेतों को उजाड़ते हैं उसके लिए यूज़ में लिए जाते हैं. एक बार की बात है, पहले जो मारवाड़ जो डेजर्ट था वो अभी पूरी तरह से जैसा अब आज है एक वैसा ही कुछ था, और यहाँ की जो क्लाइमेट भी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि आज है. और लेकिन वहाँ पर पहले ये लैंड जो हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे, और बहुत सारे केर, बेर और सांगरी के पेड़ भी हुआ करते थे. और यहाँ का जो प्लेन्स एरिया है वो बहुत सारे जो एंटीलॉप्स हुआ करते थे, उन जैसे ब्लैक बक है, चिंकारा है, नीलगाय है, इनका ये घर हुआ करता था. About 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. Some of them spread into Marwar. The Bhils resisted their encouragement, but the invaders had horses and superior and weapons
pretty soon took care of the wheels. In any case, the land appeared boundless, and the bees retreated a little towards the Aravlis. The population of Marwar was on the increase, but as centuries passed, the large herds of cattle began to affect the vegetation. The seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow. Invaders and the tribal bees found less and less to sustain themselves. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathod of Kannauj. The Rajputs now ruled the whole of Marwar. तो लगभग 3000 साल पहले की बात है। यहाँ पर जो कैटल कीपर्स का एक बहुत बड़ा झुंड था यहाँ इस एरिया में आना शुरू हो गया, जो कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया से इंडिया आया था, और उनमें से कुछ जो थे वो मारवाड़ में आकर फैल गए। भील जो थे उन्होंने उनके पहले तो अनकॉचमेंट पर उनके अननेसेसरी जो वहाँ बढ़ते जा रहे थे उसके लिए विरोध किया, परंतु जो इन्वेडर्स थे उनके पास में अच्छे खासे घोड़े थे और बहुत अच्छे क्वालिटी के वेपन्स वगैरह थे, और बहुत जल्दी उन्होंने क्या किया, भील्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, और भील जो थे वो बेचारे पीछे हटने शुरू हो गए, अरावली से पीछे अपने आप को उन्होंने कर लिया, और पॉपुलेशन जो थी इस तरह से वहाँ की मारवाड़ की धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। अब जैसे जैसे सेंचुरी बीतती गई तो वो जो कैटल का जो झुंड था उनको बहुत सब कुछ खाने को भी चाहिए था, तो वहाँ की वेजिटेशन प्रभावित होने लगी वहाँ से उससे, और जो सीडलिंग और सैपलिंग जो थे वो भी सारे के सारे चरे जाने शुरू हो गए धीरे धीरे। वो वहाँ डेवलप ही नहीं होते थे पेड़ भी, क्योंकि जो एनिमल्स थे वो सब छोटे छोटे प्लांट्स को खा जाते थे। अब जो इन्वेडर्स थे और ट्राइबल व्हील्स थे, अब उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके रहने की सस्टेन करने की जो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे वो वहाँ पर प्रॉपरली, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर वो प्रॉपरली नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। तो अब फाइनली 13th सेंचुरी एडी में उन्होंने देखा कि अब जो था राठौड़ जो थे, कन्नौज के जो राठौड़ थे, उनके द्वारा भील को अपने कब्जे में ले लिया गया फाइनली, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो मारवाड़ था अब राजपूतों के शासन के अंतर्गत आ गया। In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. His father was the headman Thakur Lohat and his mother was Hamsa Devi. The boy was called Jambaji. As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a khejuri tree, and watching the herd of black bucks. Jambaji was fascinated by the lithe grace of this handsome antelope. There was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stags. Students, 1941 में जब राव जोधा जी का शासनकाल था तो वहाँ पर एक बहुत ही ब्रेव राठौड़ किंग के शासनकाल के टाइम पर एक बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड का जन्म हुआ पीपासर नामक गांव में, और उस बच्चे के जो फादर थे वो हेडमैन थे ठाकुर लोहाट, और उसकी मदर जो थी वो हमसा देवी थी। उस बच्चे का नाम जंबाजी रखा गया, और उस बच्चे को टास्क ये दिया गया कि वो अपने फादर का जो लार्ज कैटल का और शीप का ग्रुप है उसको वो चराने के लिए ले जाया करता था। तो उसके लिए बड़ी इंजॉयफुल बात हुआ करती थी, क्योंकि वो एनिमल्स वगैरह को बहुत प्यार करता था और वो एनिमल को चराने के लिए ले जाया करता था। वहाँ खेजड़ी के जो पेड़ हुआ करते थे उन घने पेड़ों की छांव के नीचे वो लेटना और वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको देखना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। स्पेशली उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी दो वेल ग्रोन स्टैग्स की फाइट। अब जो थी व्हेन जंबाजी वॉज 25 years old, a great disaster overtook the region. The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether.
The worst sufferer were the cattle. In the first year of drought, they could eat the bajra, straw stored in the houses. The second year was very bad. There was not a blade of grass left standing anywhere. People hacked at any trees they could find and fed the animals on the leaves. But even so, there was not enough browse for all the hungry animals, and the drought continued for 8 consecutive years. The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all the trees, which finally began to dry up. When the stored grain was exhausted, people ate khejuri pods and the flour of dried bare seeds. When this too was exhausted, they tore the bark of the sangri trees and powdered and cooked it. They hunted every one of the starving black bugs, and finally they abandoned all hope and migrated in masses. Tens of thousands of cattle perished on the way. By now, the whole country was barren. There was not a tree in sight for miles together. अब जंबाजी जो थे, जब वो 25 ईयर्स ओल्ड थे, तो एक बहुत बड़े डिज़ास्टर ने उसको पूरे के पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया. यानी सूखा पड़ गया, बहुत बड़े भयंकर कंडीशन हुई वहाँ पर, और बरसात जो हुआ करती थी वहाँ पर ऑलरेडी कम होती थी, लेकिन वो अचानक से होनी बंद हो गई. अब सबसे ज़्यादा उसमें सफ़र करने वाले जो थे वो कैटल हुए. सबसे ज़्यादा सफ़र किया किसने? जानवरों ने. पहले सूखे के कुछ स्टार्टिंग ईयर में तो कोई दिक्कत इतनी खास नहीं आई. वो वहाँ पर जो स्टोर किया हुआ, घरों में स्टोर किया हुआ जो अनाज था, बाजरा था, उसको वो खा सकते थे. लेकिन सेकेंड ईयर जो था वो बहुत ही बुरा निकला, और वहाँ पर एक घास का तिनका तक भी नहीं बचा जो जानवरों को खिलाया जा सकता. अब लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया. जहाँ पर भी उनको एनिमल्स के लिए लीव्स मिलती वो काटते, है ना. बट वहाँ पर अब जो थे, पेड़ों पर इतने पत्ते भी नहीं बचे थे कि उनके जो हंग्री एनिमल्स थे उनके पेट भरे जा सके. और ड्रॉट तो कंटिन्यू चलता रहा, और लगभग 8 ईयर्स तक ड्रॉट ऐसे ही चला. अब पीपल ने क्या किया? जितने भी लास्ट बिट जो फॉलेज थी पेड़ों की, वो तक काटना शुरू कर दिया. यानी अंतिम पत्ते तक वो काटते चले गए, जो कि फाइनली जिसकी वजह से पेड़ बिल्कुल ड्राई हो गया. और जो स्टोर किया हुआ ग्रेन था, अब जब वो भी लोगों का एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया, तो लोगों ने खेजड़ी के जो पॉट्स थे, प्लांट थे छोटे छोटे, उनको खाना शुरू कर दिया. एंड उन्होंने उसका क्या कहते हैं, जो बेड सीड्स थे उनको पीस कर आटा वगैरह बनाना शुरू कर दिया. और जब ये भी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो उन्होंने क्या किया? सांगरी के जो पेड़ थे उनकी टहनी को तोड़ा और उसका उसका क्या कहते हैं, आटा बनवाया और उसको कुक किया. अब जो भी वहाँ देखते अपनी सराउंडिंग में, वो कोई भी भूखा जानवर है, ब्लैक बक है जो भूख से मरने जा रहा है, तो फाइनली जब उन्होंने हर तरह की आशाएं छोड़ दी, तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को समूहों में इधर उधर माइग्रेट कर लिया. अब हजारों जो कैटल थे इस तरह से वो तो रास्ते में माइग्रेट करने के लिए निकले, वो वहाँ से तो रास्ते में ही ख़त्म हो गए बहुत सारे एनिमल तो. और अब जो था पूरा का पूरा कंट्री जो था वो बिल्कुल बैरन, बंजर हो चुका था, और वहाँ पर पेड़ों का कहीं पर भी दूर दूर तक, मीलों तक कोई निशान नहीं था. ना कोई एक सिंगल गाय नजर आ रही थी. There was not a tree in sight of for miles together, nor a single cow or black buck. The only people to hold on were big landlords like Jambaji's father, with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. Jambaji was much affected by this drought. Many were the nights he spent in wakefulness because of the sufferings he saw around him. The dying cattle, the starving children, they haunted him day and night. And finally, at the age of 34, he had a vision. He saw men intoxicated with his own power, destroying the world
around him, and he decided to change it all. If life was to flourish again in this desolate land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. Jambaji wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejri, ber, care, and sangri trees. He wanted herds of black bugs to frolic again, and he wanted men to work for this. Jambaji knew the way to achieve this, and he began to broadcast his message in the year 1485. अब वहां मीलों तक कहीं पर भी कोई पेड़ नहीं था और ना ही कोई एक सिंगल गाय या ब्लैक बक वहां पर नजर आ रही थी। सिर्फ वहां पर जो होल्ड था, अगर लोग वहां होल्ड कर पा रहे थे तो बड़े बड़े जंबाजी जैसे जो फादर थे, उनके जैसे बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, वही वहां पर सरवाइव कर पा रहे थे, जिनके पास में ज़्यादा क्वांटिटी में बाजरा स्टोर हुआ था, बाजरा के स्टोर्स थे। किसी तरह से उस डिफ़िकल्ट टाइम में वो इसी तरह के लोग वहाँ सर्वाइव कर पाए। जंबाजी जो थे इस सूखे के प्रभाव को देखकर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए और बहुत ही दिनों तक उन्होंने अपने दिन और रात जो थे वो जाग जाग के काटे। बहुत परेशान हुए वो इस सारी चीज़ों को देखकर, अपने आसपास की जो कंडीशन थी उन दुख दर्द को देखकर, किस तरह से कैटल मर रहे थे भूख के मारे, बच्चे तड़प रहे थे, और दिन रात ये सारी चीज़ें उनके नज़रों में आती रही। और फाइनली उन्होंने 34 की एज तक एक स्वप्न देखा और उन्होंने देखा कि ये स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो अपने ही नशे में, अपनी ताकत के नशे में चूर होकर पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरी सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। और तब उन्होंने ये निर्णय किया, उस स्वप्न को देखने के बाद ये निर्णय किया कि अगर लाइफ को वापस से फ्लरिश करना है, इस डिसोलेट लैंड में लाइफ को वापस से लाना है, तो जंबाजी ने सोचा कि ज़िंदगी को कुछ डिफरेंट तरीके से जीना होगा और कुछ अलग तरीकों के अनुसार, कुछ अलग बिलीफ्स के साथ, अलग टेनेट्स के साथ जीना होगा। और जंबाजी चाहते थे कि एक बार फिर से उस जगह को, जो कभी पहले केर, बेर और सांगरी जहाँ खूब सारे ट्री हुआ करते थे, वापस से वो जगह वैसी हो जाए। वो चाहते थे कि एक बार फिर से यहाँ पर जो ब्लैक बक्स वगैरह का झुंड है, जिस तरह से वो आनंद के साथ पहले इधर उधर मंडराता हुआ, घूमता उछलता कूदता दिखाई देता था, वैसे ही वो फिर से दिखाई दे। और वो चाहते थे इसके लिए लोग उनको सपोर्ट करें। अब जंबाजी को पता था वो तरीका कि किस तरीके से उन्हें अपने इस मैसेज को लोगों तक फैलाना है, और उन्होंने 1485 में अपने इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ today's part is completed. Next part I will explain you in my next video. Thank you.